Hello students, welcome back to lecture number 10 of solutions. We left at discussion of osmotic pressure in our previous lecture. So let us start from there. There we discussed that pi v is equal to nRT, that is the solution equation or ideal solution equation, and there we prove that it is a colligative property because pi is depending upon the number of moles. We also discussed the calculation of molecular mass with the help of this property. Let me tell you one thing, that this is foremost the most important property to determine the molecular mass even of macromolecules. We can measure the macromolecules. हमने अब तक जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वहां पे हमने ये पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. आप किसी भी फार्मूले में अगर आप देखेंगे किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले में जिससे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है तो आप क्या देखेंगे that the molecular mass of the solute and the colligative property they are related inversely to each other. It means higher the molecular mass of the substance, small will be the value of colligative property. And other than osmotic pressure, all the three properties involve measurement of difference of property, difference in some property. For example, relative lowering in vapor pressure की बात करें, then we are measuring the decrease in vapor pressure. We are denoting the difference. So this difference will be small over there. Delta TF, that is TF minus TF naught. Again we are denoting the difference, so it will be small. But the osmotic pressure is not a difference. So it will be quite appreciable and measurable. So this is the best colligative property to determine the molecular mass of the substances. This you have to remember. Now, before proceeding to the applications of depression in freezing point and colligative property, that is osmotic pressure also, let me tell you one or two things. If the two solutions have same osmotic pressure, we are having two solutions with osmotic pressure pi 1 and pi 2, and pi 1 is equal to pi 2, then such solutions they are called isotonic or isoosmotic. The most appropriate word is isoosmotic because there is a very small difference between tone of a solution and osmotic pressure of a solution. क्या होता है कि हमारे जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, एनिमल मेम्ब्रेन्स, वो परफेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होते. दे अलाउ सेलेक्टिव सोल्यूट पार्टिकल, स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू देम. सो व्हाट हैपेंस इज इफ a membrane, particular membrane is allowing some small solute particle to pass through them, then those solute particle is not going to contribute anything to the osmotic pressure. So जो resulting solution है that will have a bit lower osmotic pressure. So that decrease, that is called the tone. जो आपका tone है वो होता है जो decrease in pressure होता है due to permeability of small solute particles. एक चीज ध्यान रखिए कि टोन ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. लेकिन जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट, इन दिस टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो वी विल बी टेकिंग दीज टू थिंग्स एज इफ दे आर द सेम, बट ए बिट डिफरेंस इज देयर. एज आई टोल्ड यू, you have to keep it in mind. Now the solutions having same atmospheric pressure, they are isotonic. If we use this relation, then we can say the concentration of the two solutions will also be same. ऐसे solution को isotonic solution बोलते हैं. The solutions
having higher osmotic pressure than a particular, they are called hypertonic. Or the solutions in which one of them is having lesser osmotic pressure, that is hypotonic. जैसे हमारा नॉर्मल 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये हमारे ब्लड के जो सेल सेप्स हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. सो दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद आवर RBC blood cell set. So this is isotonic with blood. So this solution can be very easily injected intravenously. इंटरवीनस जो इंजेक्शन करते हैं हम, जैसे आपका डेक्सट्रोज का, ग्लूकोज का, ये जो सॉल्यूशन जो भी इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट इनटू द वेन्स, उनके लिए जरूरी है कि दे शुड बी आइसोटोनिक विद द ब्लड. अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इंजेक्ट कर देंगे तो हमारे जो सेल्स हैं व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, दो सॉल्यूशन हो गए. आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन बराबर है, अगर हाइपरटोनिक है तो मतलब क्या है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, मान लीजिए 0.91% सॉल्यूशन से NaCl के ज्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अगर हम किसी को इंजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, दैट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंपेयर टू ब्लड. तो क्या होगा, हमारे सेल में से आपका वाटर विल फ्लो आउट, एक्सो ऑस्मोसिस, एंड इन दैट केस योर सेल विल शेक. और अगर हाइपरटोनिक में डाल देंगे तो इट विल स्वेल. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. तो हाइपरटोनिक हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपो लेस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमारे जो सेल्स हैं दे कम इन कांटेक्ट विद ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ए मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो दे श्रिंक. ऐसे सेल्स को हम फ्लैसिड सेल्स बोलते हैं और प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं. जब हाइपो सॉल्यूशन के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो वो स्वेल कर जाता है, उसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं. अब आप जो चीज हमारी रह गई थी थोड़ी सी, उसको कर लेते हैं यहां पे. दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये हमने वहां नहीं की थी और मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे. तो सर वी आर डिस्कसिंग दिस एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन क्या क्या है. सबसे पहली एप्लीकेशन है, ये आप सबने नोट भी किया होगा डे टू डे लाइफ में, मटके की कुल्फी खाई होगी सभी ने. उसमें क्या करते हैं, आइस के अंदर मटके के चारों तरफ आइस डालते हैं, उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं. वो नमक क्यों छिड़कते हैं, टू लोअर डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. उसको फ्रीजिंग मिक्सचर कह सकते हैं आप. और वो जब हम नमक डाल देते हैं उसके ऊपर, आइस के ऊपर नमक डालते हैं, तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है दैट गोज एज लो एज -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक. तो -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे अब कर सकते हैं नमक डालने के बाद इसको. तो वो आइसक्रीम जमाने के काम आता है. ये आप देखते रहते हैं आम डे टू डे. दूसरा क्या होता है, हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस यूज करते हैं. एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जनरली ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में डालते हैं. जनरली ऐसे व्हीकल्स में यूज करते हैं विच आर गोइंग टू ए कोल्डर एरिया, जहां पे आपकी फ्रीजिंग का डर रहता है. तो उसमें हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं रेडिएटर्स के अंदर, दैट लोअर डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट. और जो हमारा फ्रीज होने का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है, तो फ्रीजिंग अवॉइड हो जाती है. क्लीनिंग ऑफ स्नो, जो हिली एरियाज होते हैं जहां पे स्नोफॉल वगैरह होता है, वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल के अंदर हमारी सड़कें जो हैं वो स्नो से भर जाती हैं. तो स्नो को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर NaCl या कैल्शियम क्लोराइड का
स्प्रे कर देते हैं, जिससे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है और आपकी जो है वो स्नो क्लियर हो जाती है आपके रोड से। इसके अलावा हम जो है एक चीज और यूज करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने का मेथड है जिसको हम कहते हैं रास्ट मेथड। रास्ट मेथड में हम क्या करते हैं, कैम्फर को यूज करते हैं, जो आपका कपूर होता है कैम्फर, क्योंकि जो इसका केएफ है वो बहुत ज्यादा है, सो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो इस मेथड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दिस मेथड वी विल बी डिस्कसिंग फॉर कंपटीशंस, हाल फिलहाल वी आर डिस्कसिंग ओनली द सिलेबस। तो कैम्फर का जो केएफ है दैट इज वेरी हाई, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई। तो हम इस रास्ट मेथड को यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस। So these are the applications of freezing point, depression in freezing point. अगर हम बात करें applications of osmotic pressure, तो वो तो मैंने बीच में वैसे डिस्कस करके बता ही दिया कि हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटरवीनस सॉल्यूशंस होते हैं डिफ्यूजन के लिए, दे आर आइसोटोनिक विद द ब्लड, तो वहां पे हम यूज करते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास के सब्सटेंसेस के जो सॉल्यूट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स वगैरह हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। सो वी कैन हैव यूजेस लाइक दैट, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है, एक चीज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा यहां पे। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करने से पहले मैंने आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो चीजों के बारे में बताया था, व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन। सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। छोटा सा टॉपिक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस में मैंने क्या बताया था, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन और द टू सॉल्यूशंस, दैट इज इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी। डिफ्यूजन में नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन जो है वो बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के भी हो सकता है। दूसरा, ऑस्मोसिस में सिर्फ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन में बोथ solute as well as solvent particles, दोनों का ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। solute पार्टिकल और solvent पार्टिकल दोनों मूव करेंगे। ये आपको मेथड इट इज वेरी कॉमन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में कॉमन है ये। इसमें जैसा कि बताया था, लिक्विड और गैस दोनों में कॉमन है, लिक्विड एंड गैस। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड, ऑस्मोसिस को आप रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट। इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इसको नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इसको आप स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। नाउ
let us discuss about reverse osmosis. What is reverse osmosis? Because it is also a very important phenomena. आप सब लोग घर के अंदर यूज कर रहे हैं आरओ, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के फिनोमेना पे ही काम करता है. व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स ऑस्मोसिस? हमने जब ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास किसी बीकर में सॉल्यूशन हो और प्योर सॉल्वेंट हो, सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इस साइड में we are having solution and on this side we are having pure solvent. It is pure solvent and on this side it is solution. हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में ये कहा था कि इट इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which when applied on the solution side, minimum external pressure which must be applied on the solution side so as to just stop the osmosis. सिर्फ osmosis को रोके, वो प्रेशर हमारा osmotic pressure कहलाता है. Now think of a situation that the pressure, external pressure which we are applying, जो हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तब क्या होगा? जब ये आपका P external, if it is more than the osmotic pressure of the solution, then your solvent particles will start moving from solution to pure solvent side. solution से solvent की तरफ solvent particles का movement start हो जाएगा. That is exactly the reverse of osmosis. So this phenomena is called reverse osmosis, and it is due to the higher pressure applied on the solution side compared to the osmotic pressure of the solution. इस रिवर्स ऑस्मोसिस के फिनोमेना को हम डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं. गल्फ कंट्रीज के अंदर तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से हम जो है सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर भी बनाते हैं. तो दिस इज अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस. नाउ let us come to the last but not the least. It is a very important topic, that is abnormal molecular mass. Abnormal molecular masses, that is Van't Hoff factor. हमने अभी तक जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास मेजरमेंट किया, मैंने हर बार ये बोला कि ये तभी लागू होता है जब आपका सोल्यूट ना तो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट होता है, ना ही वो जाके एसोसिएट होता है. दैट इज देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. नाउ लेट अस डिस्कस ए केस. व्हाट विल हैपन if we determine the molecular mass of a substance which either undergo dissociation or association by means of colligative property measurement. मान लीजिए हमने KCl लिया, इसका 1 मोल डाला हमने सॉल्यूशन में. KCl is a strong electrolyte. It dissociate almost कंप्लीटली, लगभग पूरा टूट जाता है पोटाशियम आयन में और क्लोराइड आयन में. आपने डाला था 1 मोल, टूट के बन गए 2 मोल, क्योंकि 1 मोल आपका बनेगा पोटाशियम का और 1 मोल बनेगा आपका क्लोराइड का. तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? डबल, दुगने हो गए. इस पर्टिकुलर केस में ये क्या हो गए? दुगने हो गए. और हम बार बार पढ़ के आए हैं कि जितनी भी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं
they are directly proportional to number of particles. तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डबल हो गए, तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी? डबल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दैट मोलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे आर इनवर्सली रिलेटेड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट में सीपी लिख रहा हूं। सो मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पार्टिकल के डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए डबल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई डबल, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? हाफ ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर हम ऐसे कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं बाय मींस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट, देन वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास बट इंस्टेड गेट ए एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हमारा मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से अलग आएगा। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड थिंग। एसिटिक एसिड इफ इट इज dissolved in benzene then it dimerizes। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड। तो अगर हमने इसका 1 मोल डाला तो सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने रह गए? 0.5 मोल, क्योंकि दो के मिलने से एक बन रहा था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए आधे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? हाफ। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? डबल। अगेन वी आर गेटिंग ए मास एब मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। तो जो सब्सटेंसेस, जो सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं? हम क्या देखते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर मास अलग अलग आते हैं। वेंटॉफ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर दिया और उसने एक जो चीज डिफाइन की उसको हम कहते हैं वेंटॉफ फैक्टर, which can be used to determine the exact molecular mass in case of solute undergoing association or dissociation by measurement of colligative property। और उसने I को डिफाइन क्या किया? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय abnormal molecular mass, observed molecular mass, whatever you want to say it. Now we know that the molecular mass is inversely proportional to colligative property, so we can also write it as observed value of colligative property divided by normal or theoretical normal value of colligative property। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या बताया? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, एक्चुअली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडिड। आपने कितने पार्टिकल डाले थे सॉल्यूशन में? जैसे मैंने केसीएल का 1 मोल डाला तो यहां पे 1 मोल आएगा। केसीएल के टूटने के बाद कितने मोल बन गए? 2, तो यहां पे 2 आएगा। तो केसीएल के केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। एसिटिक एसिड के केस में हमने क्या कहा? 1 मोल एसिटिक एसिड डाला, यहां पे 1, रह कितने गए? हाफ। एसोसिएट हुए 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल बना तो हाफ हो गए। तो आई की वैल्यू इन केस ऑफ एसिटिक एसिड फॉर इन बेंजीन क्या आएगी? 1/2। तो अगर आपका सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो हमारी सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो फार्मूला है वो बदल जाता है। उस केस में हमें फिर लिखना पड़ेगा P0 माइनस P इन केस वी विश टू गेट एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। P0 minus P is equal to I into X2।
This will be the relation for relative loading in vapor pressure, where I is the Bantoff factor. Your delta TB will be equal to I into KB into molality. Your delta TF will be equal to I into KF into molality. And fourth one, osmotic pressure, pi V is equal to I into nRE. तो आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Bantoff फैक्टर से, and Bantoff फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड simply by the ratio of number of particles actually present in the solution and the number of particles added. अगर हम जनरल बात करें इसकी I की किसी भी ऐसे सोल्यूट के लिए जो डिसोसिएट होता है, मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं, आई एम टेकिंग ए जनरल साल्ट से X से YB, ये हमारा साल्ट है, पानी में डाला, ये टूट गया, A इंटू एक्स की पावर प्लस B इंटू वाई की पावर माइनस A, ये टूटेंगे हमारे। हमने इसका 1 मोल लिया, तो इसके 1 मोल के टूटने से अगर मैं ये मानूं कि इट कंप्लीटली डिसोसिएट, इफ इट डिसोसिएट कंप्लीटली, दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली या कंप्लीटली, तो इसके 1 मोल से A मोल ये बनेगा, B मोल ये बनेगा, देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए सॉल्यूशन में? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन दैट इज A प्लस B, तो हमारा I क्या हो जाएगा? A प्लस B बाई 1। ये तो तब है जब हमने इसको माना कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इफ डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, अगर ये पूरी तरह से नहीं टूटता, तब क्या करना पड़ेगा हमें? एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, and its degree of dissociation is alpha, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम 11th में पढ़ के आए हैं, दैट इज अल्फा इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अगर इसकी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, 1 मोल में से अल्फा मोल टूटे, 1 मोल के टूटने से ये कितना बनता था? A। अल्फा के टूटने से कितना बनेगा? A अल्फा, और ये कितना बनेगा? B अल्फा। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन में? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, जोड़ दो सबको, 1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा प्लस B अल्फा, दैट इज 1 प्लस A प्लस B माइनस 1 इंटू अल्फा, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो हमारा I क्या हो गया? I हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड, हमने कितना डाला था? 1 मोल। तो हमारे I की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस A प्लस B माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो if it is not going to dissociate completely, then if we know the degree of dissociation, then we can calculate the I, we can reverse calculate, अगर हमें I पता हो या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम I निकाल सके, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, हमें सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई है, डेल्टा TF दिया हुआ है, KF दिया हुआ है,
देन वी कैन कैलकुलेट आई। तो अगर हमें आई पता लग गया तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट इट रिवर्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल जुड़ रहा है, इफ ए पार्टिकल इज अंडरगोइंग एसोसिएशन एंड इट इज नॉट 100% एसोसिएशन, मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स ऑफ A सॉल्यूट के पानी में जाके या किसी भी सॉल्यूशन में जाके AN मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसका हमने 1 मोल लिया। लेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा। अगर हमारी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इट इज अल्फा, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल जुड़ गए तो ये बचे 1 माइनस अल्फा। ये कितने बच गए? अल्फा बाई एन, क्योंकि एक से n मॉलिक्यूल से एक बनता है तो अल्फा से कितने बनेंगे? अल्फा बाई एन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए सॉल्यूशन में? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन ये होगा हमारे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस इसमें से हम क्या करें? एलसीएम ले लें। एन एलसीएम आ गया तो 1 माइनस एन इंटू अल्फा, यही आएगा। इधर से जैसे मान लीजिए इसका हम इस 1 को छोड़ देते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, मैं इस 1 को छोड़ रहा हूं, यहां से छोड़ रहा हूं मैं इसको अगर हम सॉल्व करें तो एन एलसीएम आया तो ये एन अल्फा प्लस अल्फा, इसमें से बाहर ले लिया n प्लस 1, अल्फा बाहर ले लिया डिवाइडेड बाई n। अब यहां पे माइनस साइन है, यहां पे क्या है? माइनस साइन। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, वी आर मेकिंग दिस कैलकुलेशन अगेन, वी हैव मेड ए मिस्टेक ओवर देयर। इसमें से हमने 1 माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस कॉमन ले लिया तो हमारा ये अल्फा माइनस अल्फा बाई एन हो गया। इसको हम सॉल्व कर लें 1 माइनस एन इंटू एन अल्फा माइनस अल्फा, ये हो गया। ये हो गया 1 माइनस ब्रैकेट शुरू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू अल्फा। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए सॉल्यूशन में। तो हमारा जो आई आएगा वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n अल्फा डिवाइडेड बाई 1। सो यू आर डिवाइडिंग इट बाई 1, तो आंसर विल बी 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू अल्फा। तो ये हमारा आई आ जाएगा जनरल टर्म्स के अंदर। अगेन अगर हम किसी ऐसे सब्सटेंस के लिए करते हैं, आई पता लग जाए तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता हो तो आई निकाल सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट ऑल दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एंड न्यूमेरिकल्स। बहुत सी बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं जिनमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट अस ट्राई न्यूमेरिकल्स। अपने घर पे ट्राई कीजिए न्यूमेरिकल्स को। किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।